Namaste. I'm Ailsa Bosworth. I'm the founder and chief executive of the National Rheumatoid Arthritis Society. NRAS has been established for 16 years and is the leading patient organisation in the UK for people with rheumatoid arthritis and juvenile idiopathic arthritis. We're an evidence-based health charity, which means that any information we produce must be backed up by clinical evidence and align with national standards and guidance laid down by the regulatory authorities in this country, such as NICE, which is the National Institute for Health and Care Excellence, and professional bodies such as the British Society for Rheumatology. I've lived with severe RA myself for over 35 years, and I understand only too well the challenges of living with this difficult condition. We're making this video today with Dr. Kanta Kumar, a lecturer at the University of Manchester, who's a researcher into the issues of ethnicity in RA practice, Dr. Shirish Dubey, a consultant rheumatologist, and Jyoti, a young woman who has RA and is currently receiving a biologic drug to help control her disease. The reason that we're doing this now is because Dr. Kumar has recently conducted research into the views of South Asian people with RA on their experience of moving onto a biologic drug when the standard disease-modifying drugs no longer work well for them. I'm on a biologic drug as well. I also take methotrexate, and it's the combination of these two treatments which enables me to enjoy a good quality of life and to work between 50 and 60 hours a week. Without this medication, I would be in a wheelchair and I wouldn't be able to work at all. So it's very clear to me that the value of taking my medication every week is critical. So we're going to hear today from Dr. Dubey, Dr. Kumar and Jyoti. And I hope that the information and views expressed in this video will help you to understand more about the benefits of moving onto a biologic drug if and when you need to. रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसकी वजह से जोड़ों में सूजन होती है। छोटे और बड़े जोड़ दोनों पे असर पड़ता है और ज़्यादातर छोटे जोड़ों में सूजन होती है। जोड़ों में अकड़न भी होती है। कई बार ये बीमारी धीरे धीरे शुरू होती है, कभी कभी ये एकदम शुरू हो जाती है। ऑटोइम्यून बीमारियाँ शरीर के कई हिस्सों पर हमला कर सकती हैं। इसमें कई अंगों पर असर पड़ सकता है, जैसे कि दिल पर, फेफड़ों पर वगैरह। और भी कई सारी ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं, जैसे कि डायबिटीज़, जिसे हम शक्कर रोग कहते हैं, विटिलिगो, लूपस, थायराइड। इन बीमारियों का कोई प्रतिकार नहीं है, पर इलाज से इनको काबू में रखा जा सकता है। आजकल तो हमारी विद्या बहुत बढ़ गई है ताकि इन बीमारियों को काबू में रख सकें। इस बीमारी को काबू में रखने के लिए कई नई दवाइयाँ भी हैं और दवाई लेना ज़रूरी है। आरए के सिम्टम्स या लक्षण क्या हैं? जोड़ों में दर्द, अकड़न, सूजन, कमजोरी, अक्सर थकावट होना, चिड़चिड़ापन, खून की कमी, कभी कभी वजन कम होना, पसीने आना, शरीर पर गांठें बन जाना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। आमतौर पे ये बीमारी हाथ, पैर, कलाई, घुटने, कंधे इन पर असर करती है। क्या होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में? जोड़ों में सूजन आती है, खास करके जो परत होती है, जो लाइनिंग होती है जोड़ों की, उसमें सूजन आती है। इसकी वजह से जोड़ों में लाली, पानी भर जाना, गर्मी, दर्द, ये सब तकलीफ़ें होती हैं। जोड़ों की परत में नसें खींचती हैं, जिसकी वजह से दर्द होता है। जब सूजन काफ़ी समय तक रहती है तो हम उसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इसकी वजह से नरम हड्डी में क्षति हो सकती है और जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं। कैसे डायग्नोस करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस को? रूमेटॉइड आर्थराइटिस का रोग निर्णय या डायग्नोसिस करने के लिए कोई एक टेस्ट नहीं है। उसको पहचानने के लिए एक एक्सपर्ट जैसे कि कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट बीमारी का विवरण लेंगे, खून के टेस्ट करेंगे जैसे ESR, CRP, रूमेटॉइड फैक्टर, CCP एंटीबॉडीज़, जोड़ों की जांच करेंगे, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या MRI भी कर सकते हैं। इलाज के लिए कई सारी दवाइयों का इस्तेमाल होता है। दर्द के लिए पैरासीटामोल या नेप्रोक्सन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सूजन कम करने के लिए। लंबे इलाज के लिए मेथोट्रेक्सेट, सल्फासालाजीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, लेफ्लुनोमाइड जैसी दवाइयाँ हैं। इनको हम डीमार्ट्स कहते हैं। अगर इन दवाइयों से फ़ायदा नहीं हुआ तो बायोलॉजिक्स, जो कि जैविक डीमार्ट्स हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ से आती हैं ये दवाइयाँ?
इन दवाइयों के कई स्रोत हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पेड़ों से निकला था। सल्फासालाजीन एक रासायनिक द्रव्य है। मेथोट्रेक्सेट बड़े डोज में और रिटुक्सिमैब शुरू में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल हुए थे। मेथोट्रेक्सेट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रग है और कई सारी दवाइयों के साथ लंगर का भी काम करता है। हम लोग इसे 3-4 शताब्दियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे डॉक्टर सुब्बाराव ने 1940 में बनाया था। स्टेरॉयड एक आंतरिक रस है जो कि शरीर में खुद भी बनता है। इससे सूजन कम होती है। बायोलॉजिक्स एक नियोजित अणु पर काम करते हैं और सभी दवाइयों के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। खास करके स्टेरॉयड अगर लंबे अरसे तक बिना बड़ी मात्रा में लिए जाएं तो उससे परेशानी हो सकती है। जब हम दवाई शुरू करते हैं तो उसके दुष्प्रभाव के बारे में भी बात करते हैं। इसमें नई सोच क्या है? पिछले कई दशकों से हम लोग धीरे धीरे इलाज बढ़ाते थे। इससे लोगों के जोड़ों में क्षति हो जाती थी और जोड़ ठीक से काम करना बंद कर देते थे। आजकल हम लोग जल्दी जल्दी इलाज बढ़ाते हैं ताकि जोड़ों को बचा सकें। अभी तो कई नई दवाइयाँ भी आ गई हैं जो कि काफ़ी असरदार हैं। कई बार हम लोग 2 या 3 दवाइयाँ एक साथ शुरू करते हैं क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इलाजों में इस बीमारी का कोई प्रतिकार या क्योर नहीं है, इसलिए हमारी दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं। आपको हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपनाना चाहिए। थोड़ा व्यायाम और संतुलित खाना ज़रूरी है। सिगरेट से दूर रहिए। अगर सिगरेट पीते हैं तो उसे बंद कर दीजिए। सिगरेट पीने से रूमेटॉइड आर्थराइटिस की संभावना बढ़ जाती है और अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो तो उसे काबू में करने की संभावना कम हो जाती है। अधिक जानकारी के लिए नेशनल रूमेटॉइड आर्थराइटिस सोसाइटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं www.nras.org.uk/अपनी-जंग। बायोलॉजिक्स एक कारीगर और लक्ष्य थेरेपी है। आपके डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, जिसे हम डीमॉड्स कहते हैं, से बायोलॉजिक्स का सफ़र आप और अपने डॉक्टर के साथ डिसाइड किया जाता है। बायोलॉजिक्स ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले डॉक्टर देखते हैं कि आपके डीमॉड में चेंजेस लाया जा सकता है। अगर चेंजेस ना ला सके तो डॉक्टर आपके आरए को एक स्कोर के ज़रिए मेजर करेंगे। इस डाज या डिजीज़ एक्टिविटी स्कोर कहते हैं, ब्लड शुगर लेवल की तरह। अगर आपका डाज स्कोर बहुत हाई हो तो डॉक्टर एक्शन लेते हैं। यह समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बायोलॉजिक्स कुछ लोगों पर सक्सेसफुल हो सकता है, वो सब पर काम करें ये ज़रूरी नहीं है। इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इस प्रोसेस में हेल्थ प्रोफेशनल आपके साथ डिसीजंस लेंगे और आपको इलाज के बारे में एडवाइस देंगे। हम आपको इनकरेज करते हैं कि आप अपने हेल्थ प्रोफेशनल के साथ मिलकर ये सफ़र तय करें। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ एक पेशेंट भी हैं। इनको भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस रहा है कई सालों से और ये बायोलॉजिक्स ले रही हैं कई सालों से। क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपकी क्या भावनाएं थी जब आपको आपके कंसल्टेंट ने बोला था कि बायोलॉजिक्स शुरू करना चाहिए? जी, मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस 18 सालों से है और 11 सालों से मैं ये बायोलॉजिक्स ट्रीटमेंट ले रही हूँ। उससे पहले मैं कई दवाइयों पर रह चुकी हूँ मगर उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब मुझे बायोलॉजिक्स दी गई थी, ऑफ़र की गई थी, तो मेरे कंसल्टेंट्स ने मुझे कहा कि ये इंजेक्शन्स लेने पड़ेंगे और मैं उससे ज़्यादा डरती थी। मैं ज़्यादा डरती थी कि मुझे इंजेक्शन्स लेने पड़ेंगे। मैं ऐसे नहीं सोचती थी कि इसका फ़ायदा भी क्या होगा। अगर मैं बायोलॉजिक्स नहीं लेती तो मैं कभी ठीक नहीं फील करती। ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। रिसर्च से हमें ये पता चला है कि दक्षिण एशियाई लोग जब बायोलॉजिक्स के बारे में बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि बायोलॉजिक्स बहुत हानिकारक हो सकते हैं। वो दूसरी राय के लिए या तो अपने परिवार वालों से या इंडिया में दूसरे डॉक्टर्स से मशवरा करते हैं। आपकी क्या राय है बायोलॉजिक्स के बारे में? आपको अपनी रूमेटोलॉजी टीम से क्या मिलता है? मेरे लिए तो बायोलॉजिक्स ट्रीटमेंट बहुत फ़ायदेमंद रही है। बायोलॉजिक्स से पहले मैं भी इंडिया गई थी ट्रीटमेंट के लिए, मगर वहाँ हमेशा मुझे डर लगता था, मुझे चिंता होती थी कि दवाइयों में क्या है। इस वजह के लिए मुझे यूके की मेडिसिन पे बहुत भरोसा है। बायोलॉजिक्स ट्रीटमेंट अब 17 सालों से इस्तेमाल हो रही हैं। रिसर्च के साथ साथ यूके में नेशनल बायोलॉजिक्स रजिस्टर भी है। इन्होंने साबित किया है कि ये दवाइयाँ फ़ायदेमंद भी है और अपने लिए सुरक्षित भी है। मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे डॉक्टर्स मुझे मदद करते हैं और मुझको समझते भी हैं।
ज्योति, हमारी रिसर्च में ये शो किया जा रहा है कि बहुत से लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जानकारी नहीं है, और जो दवाई हम दे रहे हैं पेशेंट्स को, कोई पेशेंट्स ले रहा है मेडिकेशन और कोई पेशेंट्स नहीं ले रहा है। आपका क्या ख्याल है कि ये वीडियो दौरान हमारे पेशेंट्स को जानकारी मिल पाएगी? यूके में कई लोग हैं जो इंग्लिश समझते नहीं हैं या नहीं बोल पाते। इस वजह से कभी कभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती। मेरे हिसाब से ये इस तरह की वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब जानकारी हिंदी में दी जा रही है। मैं चाहूँगी कि सब साउथ एशियाई के लोग जो हिंदी, उर्दू, पंजाबी समझते हैं वो सब इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं। ज्योति, हमारी रिसर्च में ये भी शो किया जा रहा है कि पेशेंट्स बहुत फिक्र कर रहे हैं इस बात का कि उन लोगों को बायोलॉजिक्स पहले क्यों नहीं मिल रही। इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि उन लोगों को ये नहीं मालूम कि हमको गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि हमको पेशेंट्स को ये सब पहले बताना चाहिए? मुझको लगता है कि डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स को पेशेंट्स को सभी ट्रीटमेंट्स के बारे में शुरू से ही जानकारी देनी चाहिए। इसके अलावा हम खुशनसीब है कि इंटरनेट पे भी बहुत जानकारी मिल सकती है, जैसे एनरेस की वेबसाइट। एनरेस की वेबसाइट में सब रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाइयों की जानकारी एक बुकलेट में मिलती है। इस बुकलेट में डैश स्कोर क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सब कुछ लिखा हुआ है। ज्योति, आपको साइड इफ़ेक्ट्स बारे में फ़िक्र हुआ जब आपने बायोलॉजिक्स शुरू की? जब मुझको बायोलॉजिक्स के बारे में डॉक्टर्स ने बताया, मुझको साइड इफ़ेक्ट्स का ज़्यादा डर नहीं था। मुझको तो बस इंजेक्शन लेने का डर था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता चला गया। मैं तो खुशनसीब हूँ कि बायोलॉजिक्स लेने के बाद भी मुझको साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हुए हैं। मेरे परिवार वाले सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और वो देख सकते हैं कि बायोलॉजिक्स से कैसे मैं ठीक हूँ। जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी उससे आप सेटिस्फाइड थे? जी, मुझे तो बहुत बेनिफिट मिला है ये सब इन्फॉर्मेशन से। I'd like to thank Jyoti, Dr. Kantakumar and Dr. Shirish Dubey for their collaboration in making this video. Dr. Kumar's research showed that some people valued getting information through group discussion, whilst others suggested that getting information about RA and biologics through video would be valued. We've responded to that request in the making of this video, and we really hope that you have found that the information to be useful and helpful in thinking about your own treatment or that of a loved one. We intend to build on this in providing relevant information for the South Asian population affected by rheumatoid arthritis on our Apni Jung web area. If you have any ideas about the kind of things that you would like us to cover or publish information on, please do get in touch with us. Thank you for watching. Help us to spread the word about Apni Jung. Tell your family and friends who might be living with RA. We're here to help you and share the journey. Thank you.